إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں منتظمین اجلاس نے آپ حضرات کے سامنے روبرو ہو کر جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے توحید کی عظمت۔ حضرات، تقریر کے آغاز میں قرآن مجید سورۃ القصص کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ توحید کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی نعمت سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ حضرات، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے ضمن میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے گزر رہے تھے، دنیا کے آخری سانسیں آپ لے رہے تھے، زندگی کے آخری سانسوں میں آپ تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آپ کے سرہانے آ کر کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا۔ اہل علم کہتے ہیں ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے رہے، آپ کی نبوت میں آپ کا سہارا بنے رہے، آپ کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، واحد شخصیت ابو طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اسلام کو قبول کر لے، دین اسلام کو آپ قبول کر لیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے چچا کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا انک لا تہدی من احببت،
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कहा कि अल्लाह के नबी आप जिसे चाहते हैं आप उसे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत ये अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अपनी मर्जी से अता करता है। हजरात, तौहीद बहुत बड़ी नेमत, तौहीद बहुत बड़ी दौलत, तौहीद बहुत बड़ा सरमाया है। इस कायनात की सबसे अजीम नेकी अगर कोई है वो तौहीद है। इस कायनात का सबसे बड़ा सरमाया अगर कोई है वो तौहीद है। इस कायनात की सबसे अजीम नेमत अगर कोई है वो तौहीद है। जिस आदमी को अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा, जिस आदमी को अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की नेमत से सरफराज किया, जिस आदमी को अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा, इस कायनात का सबसे खुशनसीब इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा क़द अफ़लह मन अस्लम, क़द अफ़लह मन अस्लम, वो आदमी कामयाब हो गया जिसे अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दी, जिसे अल्लाह ने तौहीद से नवाजा, जिसे अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से सरफराज किया, वो आदमी कामयाब हो गया। वरुज़िक़ कफ़ाफ़ा, अल्लाह ने जिसे रोज़ी बक़द्र ज़रूरत उसको अता कर दी। वक़न्नअहुल्लाहु बिमा अता, और उस पर अल्लाह ने क़िनाअत की, नेमत से उसको माला माल किया, वो आदमी कामयाब हो गया। तौहीद कितनी अजीम नेमत, कितनी बड़ी दौलत, तौहीद कितना बड़ा सरमाया है। एक मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूदी रहा करता था, एक यहूदी लड़का रहा करता था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह शाम रहता था। खादिम रसूल होने का शर्फ उस नौजवान लड़के को हासिल था। हुआ ये कि वो बीमार हो गया, हुआ ये कि वो बीमार हो गया। अल्लाह के नबी की मजलिस में आना छोड़ दिया। कई दिन हो गए। कई दिन गुजरने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, कहा कि ये बताओ वो यहूदी लड़का कहाँ है जो मेरी खिदमत में लगा रहता, जो मेरी खिदमत में, मेरी सोहबत में रहता। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी लड़का बीमार है, इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर है, जिंदगी के आखिरी सांसें वो ले रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन उस यहूदी लड़के के घर तशरीफ ले गए उसकी इयादत के लिए, और आप अलैहिस्सलाम उस यहूदी लड़के के घर में दाखिल होकर के आपने उस बच्चे के सरहाने बैठ गए। रसूलुल्लाह उस बच्चे के सरहाने बैठ गए। इस वाक़ये को गौर से सुनो, इस मिसाल को गौर से सुनो और ये मैसेज, ये पैगाम लेकर के जाओ। तौहीद बहुत बड़ी नेमत, तौहीद बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह ने मुझे और आपको दौलत तौहीद से नवाजा है। हम इस कायनात के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी बच्चे के घर में तशरीफ लाए और उसके सरहाने आकर के बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से खिताब करके कहा कि या गुलाम क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ बच्चे, अपनी ज़बान से कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा। उसका बाप एक यहूदी था, वो बच्चा एक यहूदी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सामने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम का पैगाम आपने पहुंचाया। कहा कलिमे का इकरार कर लो, कल क़ियामत के दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जहन्नम से तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा। वो बाप जो कि यहूदी था, और यहूदी इस्लाम और अहले इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन है। 1400 साल तारीख उठा करके देखे, इस्लाम को जितना नुकसान इन यहूदियों ने पहुंचाया, जितना ज़रर इस्लाम और अहले इस्लाम को यहूदियों से हुआ, शायद किसी कौम ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो यहूदी बाप उस बच्चे की तरफ देखा, रसूलुल्लाह के अखलाक से, रसूलुल्लाह के किरदार से इतना मुतासिर हुआ वो बाप। उस बाप ने अपने बच्चे से कहा कि अती व अबुल क़ासिम, कहा अबुल क़ासिम की इताअत कर लो, अबुल क़ासिम की बात मान लो। इतना सुनना था कि उस बच्चे के ज़बान से कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाता है। वो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करने वाले रावी कहते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं, उस बच्चे के ज़बान से कलीमा जैसे ही जारी हो गया,
اس کے فوراً بعد اس بچے کے جسم سے اس کی روح نکال دی گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو بچہ یہودیت پر تھا، جو بچہ کفر کے راستے پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ بچہ مسلمان ہو گیا، اور جیسے ہی اب کلمے کا اقرار اپنی زبان سے کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے، مسرت کے مارے آپ علیہ السلام اس بچے کے گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی زبان سے الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں، اس اللہ کی میں بڑائی کرتا ہوں، اس اللہ کی حمد و ثنا میں کرتا ہوں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا، اس بچے کو اللہ نے جہنم سے محفوظ کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائی، توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس آدمی کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا اس کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی رسول ہے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حکیم ابن حزام کون ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں رشتے میں۔ 60 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں ہدایت دی، 60 سال کی عمر میں اللہ نے اسلام کی دولت سے انہیں نوازا۔ اہل علم، اہل سیر کہتے ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً عمر میں 13 سال کے بڑے تھے، 13 سال کے بڑے تھے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جس وقت اسلام لائے، جس وقت مسلمان ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی، 60 سال۔ اہل علم کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد مزید 60 سال آپ زندہ رہے، کل ملا کر 120 سال آپ کی عمر رہی، معمرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے آ کر کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے زمانے جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہیں کیا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نیکیوں کا ثواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ اپنی بعض خوبیوں کا ذکر کیا، کہا کہ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، دین اسلام کو قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں میرے کچھ خوبیاں تھے، میرے کچھ نیکیاں تھیں۔ پہلی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا پہلی نیکی یہ ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ میری پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ میں غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت میں غلام خرید کر کے آزاد کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، غلام خرید کر کے آزاد کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر کوئی شخص کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے اگر کوئی آدمی کسی ایک غلام کو آزاد کر دے۔ حکیم ابن حزام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں غلاموں کو خرید کر کے میں آزاد کرتا تھا۔ تیسری سب سے بڑی خوبی آپ کی یہ تھی، کہا کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے، توحید کی نعمت ملنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جن بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا ان بچیوں کو میں اپنی پرورش میں لیتا، اپنی کفالت میں لیتا، ان کو پالتا میں، ان کی پرورش کرتا میں، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتی، شادی کی عمر کو پہنچتی تو حکیم ابن حزام ان بچیوں کو لے کر کے ان کے ماں باپ کے پاس جاتے، کہتے کہ یہ تمہاری بچی ہے، اب یہ جوان ہو چکی ہے، شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو اس کا نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو نکاح کر دو، اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو میں اپنی ذاتی پیسوں سے میں اس بچی کا نکاح کر دوں گا۔ میں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اے حکیم اس بات کو جان لو
अस्लम्त अला मा सलफ लक मिन खैर, आपने कहा अल्लाह ने तुम्हें जो तौहीद की नेमत अता की है, अल्लाह ने तुम्हें जो हिदायत की नेमत से माला माल किया है, अल्लाह ने तुम्हें जो दीन इस्लाम की नेमत से नवाजा है, ये दर हकीकत ज़माने जाहिलियत में की गई तुम्हारी नेकियों का सिला है। अल्लाह ने उन्हीं नेकियों के बदले में तुम्हें इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हज़रात, कहना यह है कि तौहीद इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। तौहीद की अगर हम बात करें, तौहीद की अगर हम बात करें, ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है। ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के वहदानियत का गवाही देता है। कायनात की हर मखलूक अल्लाह के एक होने की गवाही देता है। ये आसमान गवाही देता है कि तौहीद अल्लाह ही अकेला इबादत के लायक है। ये ज़मीन गवाही देती है इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। कायनात की छोटी छोटी मखलूक भी इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है। तौहीद इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मिशन के तहत, इसी मकसद को आम करने के लिए अल्लाह ने अंबियाओं को मबूस किया। जितने भी अंबिया कराम इस ज़मीन पर मबूस किए गए, जितने भी अंबिया कराम को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा, हर नबी के बेअसत का मकसद यही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मुकाम पर कहा, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने कहा, ए नबी, हमने तुमसे पहले जितने भी अंबियाओं को भेजा, जितने भी रसूलों को हमने भेजा, हर नबी का मिशन एक ही था, हर नबी की दावत एक थी, अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को दावत देना, तौहीद की तरफ इंसानों को बुलाना, तौहीद की तरफ लोगों की रहनुमाई करना। इसी मकसद के तहत अल्लाह ने अंबियाओं को भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौर नबवी में मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ दाई बना करके भेजा, यमन की तरफ दाई बना करके भेजा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल को इस बात की नसीहत फरमाई, कहा कि या मुआज़, कहा कि ए मुआज़, अहले किताब की तरफ जा रहे हो, अहले किताब की तरफ दाई बन करके जा रहे हो, सबसे पहले अहले किताब को तुम एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, तौहीद की तरफ तुम उन्हें दावत देना। इसी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने अंबियाओं को मबूस किया। हज़रात, तौहीद कितनी अजीम नेमत, तौहीद की अज़मत को अगर जानना है, इस बात को भी जान ले आप, जो आदमी अपनी उखरवी नजात चाहता है उसके लिए तौहीद शर्त है। जो आदमी उखरवी नजात चाहता है उसके लिए तौहीद शर्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहा मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो आदमी दुनिया से इस हालत में गुजरे, उसने अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, कलिमे का इकरार कर ले, तौहीद का इकरार अपनी ज़बान से कर ले, वो आदमी सीधे जन्नत में जाएगा। बल्कि इतना ही नहीं, हमारे और आपकी नेकियों की कबूलियत, हमारे और आपकी दुआओं की कबूलियत, हमारे और आपकी इबादतों की कबूलियत के लिए तौहीद शर्त। तौहीद के बगैर आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं, तौहीद के बगैर आपकी इबादतें काबिल कबूल नहीं, तौहीद के बगैर आपके सदक़ात व खैरात काबिल कबूल नहीं, तौहीद के बगैर इंसान की इबादतें राएगा हो जाती है। इसीलिए हज़रात, तौहीद शर्त है अमल की कबूलियत के लिए। बल्कि इतना ही नहीं, कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक़ में सिफारिश करेंगे, अपनी उम्मत के हक़ में सिफारिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और आपकी सिफारिश का हक़दार सिर्फ़ और सिर्फ वही आदमी बनेगा जिस आदमी ने इस दुनिया से इस हाल में रुखसत हुआ हो कि उसने कभी अल्लाह के साथ शिरक ना किया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अदीम सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबे सवाल किया, कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मन असअदुन नास बिशफ़ाअती यौमल क़ियामा। आपने फरमाया, कहा कि क़यामत के दिन कौन ऐसे लोग हैं, कौन वो अफराद हैं जिन्हें आपकी शफ़ाअत नसीब होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह,
कहा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसतम मिन क़ल्बि, आपने कहा जो आदमी अपनी ज़बान से कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करे, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत दे, यानी तौहीद की हालत में जो आदमी दुनिया से इंतकाल होगा, कल क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसको हासिल होगी। उतना ही नहीं हज़रात, इस वक्त मुझे और आपको इन हालात में जहाँ इर्तिदाद की एक लहर हम और आप देख रहे हैं, जहाँ आए दिन फितनों की एक बारिश हमें नज़र आती है, जहाँ आए दिन मुसलमान इर्तिदाद की लहर का शिकार है, ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे हालात में मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने दीन की हिफाजत करें, अपने तौहीद की हिफाजत करें और इस तौहीद को आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें। बिलखुसूस माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अपनी औलाद को सबसे पहले तौहीद का दर्स दें, तौहीद का दर्स दें। अपने आने वाली औलाद, अपने आने वाली नस्ल को उनके रग रगों में तौहीद को मुंतकिल करें, तौहीद का सबक पढ़ाएं। किताब तौहीद जैसी किताब को अपने घरों में पढ़ाने की आदत डालिए। तक़वियतुल ईमान जैसी अजीम किताब अपने घरों में पढ़ाइए, तौहीद का दर्स उन्हें दीजिए। कुरान मजीद में अंबिया के सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है कि अंबिया को अपनी औलाद के लिए कितनी बड़ी फिक्र होती थी तौहीद को लेकर। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। इन आयतों को आप पढ़ें। अंबिया दुनिया से जाने से पहले अपनी औलाद को सबसे ज़्यादा जिस बात की तलक़ीन करते वो अक़ीदे तौहीद है, अक़ीदे तौहीद है। इस वक्त हमारा ईमान लूटा जा रहा है, हमारे अक़ाइद पर डाका डाला जा रहा है। इन हालात में अपने ईमान, अपने तौहीद की हिफाजत की ज़रूरत है मेरे भाई। और आखिरी बात बताकर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। तौहीद की हिफाजत के लिए ज़रूरी है रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे, रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे। दुआओं के ज़रिए से इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगे। कुरान मजीद में कई ऐसी दुआएं हैं जिन दुआओं को पढ़ने का हुक्म दिया गया है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ये दुआओं का एहतमाम करें। या अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। कहना यह है कि तौहीद बहुत बड़ी नेमत, तौहीद के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तौहीद को अपनाओ, तौहीद पर कायम रहो। और उखरवी कामयाबी चाहते हो दुनिया से इस हालत में रुखसत हो जाओ कि तुम्हारी ज़बान से कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार हो और साथ ही रब्बुल आलमीन से अपने तौहीद की हिफाजत के लिए दुआएं मांगो। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को अल्लाह हमें तौहीद की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में बाहयात रखे, इस्लाम और ईमान की हालत में अल्लाह हमें बाहयात रखे। और जब हमें दुनिया से अल्लाह उठाए, इस हाल में अल्लाह ताला हमें उठाए कि कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान पर जारी हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।